اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے عملیات کورس کے بارے میں بات چیت کی، اس کے بعد بارے میں وضاحت کی، اور اس کورس کے لیے سب دوستوں کو، جو نئے دوست عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو دوست عملیات کر چکے ہیں لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، یا ایسے عاملین حضرات ہیں جن کے عملیات تو کیے ہوئے انہوں نے لیکن صحیح ان کو گائیڈنس نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، تو ایسے سب دوستوں کو میں نے دعوت دی ہے کہ ان 2 ماہ میں ربیع الاول اور ربیع الثانی میں یہ شارٹ عملیات کورس کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو، عملیات کورس کے بارے میں جب سے یہ ویڈیو چلی ہے بہت سے دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کئی گزارشات بھی کی کہ اس کورس میں فلاں عمل رکھا جائے، اس کورس میں فلاں عمل رکھا جائے، اور اس میں ایسا ہونا چاہیے، اس میں ویسا ہونا چاہیے۔ تو محترم دوستو، دیکھیں، ایسے سب دوستوں کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جتنے بھی عملیات ہم نے مرتب کیے ہیں وہ اس طریقے سے مرتب کیے ہیں کہ ایک عام مسلمان جو وقت نہیں دے سکتا ہے ایسے کاموں میں، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ یہاں اب گوشہ نشینی تو ناممکن ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہ ہو، پڑھنے والے پہ، عامل پہ، عمل کرنے والے پہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، تو اس وجہ سے اس کورس کو بہت آسان کر کے دیکھیں، عملیات کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی عمل کے موکل یا روحانیت حاضر ہو جائے۔ موکل روحانیت حاضر ہوتی ہے چاہے آپ ایک دفعہ بھی پڑھیں، بات ہوتی ہے آپ کو نظر آنے یا نہ آنے کی۔ آپ جب زکوٰۃ کی نیت سے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو موکلوں کو تو آنا ہے، کیونکہ حکم خداوندی کے پابند ہیں۔ جب آپ وہ دعا یا وہ وظیفہ کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس سے منسلک جو روحانیت ہوتی ہے وہ حاضر ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، انہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، اور وہ اپنا آپ پہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ اس قابل نہ ہو جائیں کہ آپ انہیں دیکھ یا سن سکیں، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں۔ بعض اوقات دل کا سکون محسوس ہونا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ آ گیا ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی روحانیت نازل ہو رہی ہے، کوئی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اتنا مست ہو جاتا ہے پڑھنے میں کہ وہ پڑھتا ہی جاتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ پڑھائی بند کروں، اور بعض اوقات شیطانی دخل کی وجہ سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، بدمزگی جسے کہتے ہیں، دماغ میں ایک قسم کی بے چینی، بدمزگی، اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بندہ بولتا ہے یار چھوڑو، کچھ بھی نہیں ہے ان کاموں میں۔ تو یہ ایک شیطانی حرکات ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر کوئی غلطی ہے، آپ کے اندر ہی کوئی فالٹ ہے، یا تو آپ نے عمل کی شرائط پوری نہیں کی یا آپ کے گناہ آپ کے آڑے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اس وظیفہ پڑھنے میں، اس قرآنی عمل پڑھنے میں یا اس ذکر کرنے میں سکون نہیں مل رہا۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ استغفار کریں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میرے جس گناہ کی وجہ سے میرے ان
नेक कामों में रुकावट आ रही है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मेरे वो गुनाह माफ फरमा और इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए। ये एक पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। उसके अलावा सुकून इतना बाद औक़ात महसूस होता है कि बंदा पढ़ाई भूल जाता है। तो यहां भी ये भी एक किस्म की साजिश होती है। बाद औक़ात शैतान इंसान के दिमाग पे हावी होके उसे इतना मदहोश कर देता है कि वो पढ़ाई भूल जाता है और उसके ज़हन में ये होता है कि मुझे रूहानी सुकून मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। उसको तादाद भुलाने और वजीफे को दाएं बाएं करने के लिए शैतान इस किस्म की कैफियत पैदा करता है और इसमें अक्सर इंसान का अपना हमजाद ही मुलविस होता है, यानी इसके अपने हमजाद की कार्रवाई होती है कि वो इंसान को इस तरीके से भटकाता है, उसको नींद आना शुरू हो जाती है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहिए। जितनी आपको तादाद बताई गई है, आपकी तवज्जो तादाद की तरफ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फलां चीज हुई या नहीं हुई, ये हुआ या नहीं हुआ। आपकी तवज्जो उस तरफ रहनी चाहिए। किसी बुजुर्ग से किसी ने सवाल किया कि हजूर अल्लाह अल्लाह वैसे ही करो, आप ये क्या सारा दिन तस्बीह हाथ में पकड़ी होती है और तस्बीह पे पढ़ते हो, अल्लाह से हिसाब करते हो क्या? तो उन बुजुर्ग ने उसको जवाब दिया कि नहीं बेटा, तस्बीह हिसाब के लिए नहीं होती, तस्बीह तवज्जो के लिए होती है। ये तस्बीह मुझे याद दिलाती है कि मुझे अल्लाह का जिक्र करना है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक नफ्सियाती पॉइंट है। बुजुर्गाने दीन की बातों में बड़ी हिकमत होती है। तो जब बंदा तस्बीह लेके पढ़ता है या एक तादाद मुकर्रर करके उस टारगेट को ज़हन में रख के पढ़ता है कि मुझे इतना पढ़ना है और ये बिल्कुल सही से पढ़ना है, तो उसकी तवज्जो की वजह से ही उसकी तवज्जो की कुव्वतें बेदार होना शुरू हो जाती हैं, उनकी प्रैक्टिस शुरू हो, उनकी वर्जिश एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसकी तवज्जो को मजबूती मिलना शुरू हो जाती है और किसी भी चीज़ में उसकी बातिनी तवज्जो मजबूत होती जाती है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, यानी यकसुई हासिल करने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए ये तवज्जो रखना कि तादाद दाएं बाएं नहीं हो जाए और मुझे अमल की शराइत पूरी करनी है। अमल में अक्सर जो शराइतें की जाती हैं उनका मकसद उसके पीछे यही होता है कि आपकी एक तवज्जो बनती है, तवज्जो की ताकत बेदार होती है, तवज्जो में मजबूती आती है। मसलन आपको इस तरफ मुंह करके बैठना है, इस तरीके से बैठना है, इस रंग का जानामाज इस्तेमाल कराना है, इस किस्म के कपड़े पहनने हैं, इस किस्म की खुशबू लगानी है, इस किस्म की खुशबू जलानी है और इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। ये जो भी शराइत आपको बताई जाती हैं, इन शराइत के पीछे बड़ी हिकमत होती है। हिकमत यही होती है कि इससे आपकी तवज्जो अपने टारगेट की तरफ होती है, मजबूत होती है। उस तवज्जो के लिए आप एहतमाम करते हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए सारे एहतमाम का मकसद जो होता है यही होता है कि आपकी तवज्जो की ताकत मजबूत हो। यानी जितना भी ये एक फन है, फन अमलियात है, चाहे वो सिफली है चाहे वो नूरी है, दोनों में मेन किरदार तवज्जो की ताकत का होता है। जब तक आपकी तवज्जो नहीं होगी तब तक आपका अमल मजबूत नहीं होगा और उसके असरात जाहिर नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये चंद बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश की। इंशाल्लाह आगे चल के हम बड़े कोर्सेस भी कराएंगे। रजब, शाबान, रमजान, इन 3 माह के अंदर हम बड़ी सूरतों के भी कोर्स रखेंगे, जिसके अंदर आपको सूरह यासीन शरीफ, सूरह रहमान शरीफ, सूरह जिन शरीफ, सूरह मुज़म्मिल शरीफ और इसके अलावा बड़ी बड़ी दुआएं हैं। दुआए सैफी, दुआए नूर है, हफ्त हैकल शरीफ है, उसके अलावा गंजुल अर्श शरीफ है और बहुत सी ऐसी दुआएं जिनके आपको हम अमलियात कराएंगे। तो ऐसे दोस्त जो कॉल कर रहे हैं कि ये अमल होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो पहले ये तो देखें कि शॉर्ट कोर्स में कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। इसमें आप सूरह फातिहा के आमिल बन रहे हैं, इसमें आप सूरह इखलास के आमिल बन रहे हैं, इसके अंदर आप सूरह फलक और नास के आमिल बन रहे हैं, इसमें सूरह कौसर के आमिल बन रहे हैं, इसके अंदर आप मंजिल शरीफ के आमिल बन रहे हैं, यानी 33 आयतों के आमिल बन रहे हैं। इसके अंदर आप जो है
اللہ ताला के अस्मा के आमिल बन रहे हैं, इसम या अल्लाह के आमिल बन रहे हैं, या काबिदों के आमिल बन रहे हैं। आप इसके अंदर बड़ी बड़ी जो है वो ऐसी चीजें हैं, ऐसी आयतें हैं जिनके आप आमिल बन रहे हैं, जो दुनिया के आप समझो सब कामों के लिए आपके पास जो है मवाद जमा हो रहा है। 2 माह के अंदर आप एक मुकम्मल आमिल की सूरत में 2 माह बाद आप जाहिर होंगे, आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी, बशर्ते कि आप हमारी शराइत पर और तरीके पर अमल करें। और काफ़ी दोस्तों ने ये भी सवाल किया कि गैर मुमालिक में जो दोस्त रहते हैं वो फीस किस तरीके से जमा कराए। तो उनके लिए है कि गैर मुमालिक में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मनीग्राम के ज़रिए या आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए या बैंक के ज़रिए आप, हमारा ये दिया गया है बैंक का जो है हमारा वो अकाउंट नंबर भी है, और उसके अलावा इसके अंदर हमारा इजी पैसा नंबर भी दिया गया है, और बाकी व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप जो है उसकी रसीद भेज दें, हम यहाँ से रिसीव कर लेंगे। अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के साथ भेज दें, आप SMS कर दें, हम आपको रजिस्टर्ड कर लेंगे और आपका नंबर भेज दें, आपका नंबर ग्रुप में शामिल कर देंगे। व्हाट्सएप पे मेरा पहले से ग्रुप है आमिल इमरान कादरी। अब किसी को ये बात नहीं हो ज़हन में कि उसके अंदर ये सिखाया जाएगा, वो एक कॉमन ग्रुप है, वो कॉमन ग्रुप है। जो ग्रुप हम बनाएंगे व्हाट्सएप के अंदर, वो ग्रुप मखसूस उन लोगों के लिए होगा जो अमलियात कोर्स कर रहे हैं। वो ग्रुप अलग से अमलियात ग्रुप के नाम से अमलियात बनेंगे, अमलियात का ग्रुप बनेगा, और उन्हीं दोस्तों को शामिल किया जाएगा जो फीस दे चुके हैं और इस अमलियात कोर्स में शामिल हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वक्तन फ़वक्तन लाइव आकर भी अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे या अपने फेसबुक अकाउंट पे लाइव आकर भी लोगों से जो है उनके सवालात के जवाब दें, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। ये भी हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग ताउन करेंगे, हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। अगर आप कोर्स नहीं भी करते, कम से कम हमारी हिम्मत अफजाई करें, हमारे इस वीडियो को, जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं उसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने पैसों के लिए नहीं ये काम शुरू किया। हमने ये काम शुरू किया है फी सबीलिल्लाह, इसलिए शुरू किया कि हम अपने इस मिशन को पूरी दुनिया में फैलाएं। लोग गुमराह हो चुके हैं, जो लोग चंद गलत लोगों की वजह से पीरों को बदनाम कर रहे हैं, बुजुर्गों को बदनाम कर रहे हैं, आमिलीन को बदनाम कर रहे हैं। इस मुकद्दस शोबे फ़न अमलियात, ये एक मुकद्दस शोबा है, लोगों की मसीहाई का शोबा है। ये अमलियात मसीहाई का शोबा है। जिस तरह आप कहते हो ना डॉक्टर मसीहा हैं, डॉक्टर आपको लूट भी लेते हैं, लाखों रुपए भी ले लेते हैं, फिर भी आपकी नज़र में वो मसीहा हैं। लेकिन एक आमिल आपकी नज़र में क्या होता है, अगर आपसे 500,000 रुपये आपने दे दिया ना, तो आपको बोलते हैं तो लालची आदमी है, ये तो ऐसा है। तो वहाँ आपको आमिल इंसान नज़र नहीं आता, उसके अमलियात नज़र नहीं आते हैं। आमिल होना बड़ी बात है, आमिल होना बड़ी मंजिल है। लोगों की तकलीफ़ें अपने सर, आमिल लोगों के दर्द समझता है, आमिल लोगों की तकालीफ में उनकी हिम्मत अफजाई करता है। आमिल अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का रास्ता दिखाता है, आमिल नमाज का रास्ता दिखाता है, आमिल आपको कुरान पढ़ने की तरगीब देता है, आमिल आपको ज़िक्र व अस्कार में लगाता है, आमिल आपके यकीन को रब वाली ताला पे पुख्ता करता है। आमिल बड़ी बात है, आपकी हर बात सुनते हैं, आपके दुख दर्द का मुदावा करते हैं, आपको तसल्ली देते हैं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन दिलाते हैं। तो आमिल कोई कम बात नहीं होती है, आमिल बड़ी बात होती है। आमिल को हल्का ना लिया जाए। आप खासतौर पे मीडिया के दोस्त या ऐसे दोस्त जो कच्चे दिमाग वाले होते हैं कि किसी चरसी मवाली को पकड़ के मीडिया पे पेश करते हैं, जाली पीर पकड़ा है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। जाली पीर आपको पता है पीर क्या होता है? पीर देखना है पीर कैसा होता है? मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी को देखें, जिनकी हर अदा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है। पीर आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा है, जिनका उठना बैठना, बात करना, देखना,
हंसना बोलना सब शरीयत के मुताबिक होता है। पीर ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसी हस्तियां पीर होती है। ये चरसीमों वाली पीर थोड़ी होते हैं, ये तो चोर हैं। आपको तो ये पकड़ के सजा देनी चाहिए कि ये लोग पीरों को बदनाम कर रहे हैं, खुद को पीर कहलवा के। ऐसों को पकड़ के ये सजा देनी चाहिए, न कि आप उनको पीर साबित करके पीरों को गलत बोलना शुरू हो जाए। ये तो नाइंसाफी है, ये कहाँ की अक्लमंदी है। आप किसी चरसी को पकड़ते हो तो दिखाओ कि ये चरसी और इस मुकद्दस नाम को बदनाम कर रहा है। आप ऐसा नफसियाती असर डाल रहे हो जिससे लोग बुजुर्गों से दूर होना शुरू हो गए, लोग उल्मा से दूर होना शुरू हो गए। जहां पीर का नाम सुनते हैं वहां दूर भागते हैं कि भाई पीर जाली होते हैं। ऐसा मत करो, इससे दीन को नुकसान पहुंच रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अभी थोड़ा टाइम बचा है, कोशिश कीजिए 28 सफर से पहले तक आप अपनी फीस जमा करा दें और इंशाल्लाह पहली रब्बिल अव्वल से जो है आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। मेरी ये वीडियो शेयर करें, दोस्तों तक